Hello guys, so we are going to start with heat, the first chapter for this course. ठीक है, where we are starting with heat. Heat में थोड़ा सा गर्मी का एहसास मिलेगा. Okay, so first of all, what is heat? Before we go into these details, what is heat? Heat is something, a form of energy, right? Heat is a form of energy which gives us sensation of what? Sensation of warmth or cold, right? Heat is a form of energy which gives us a sensation of warmth or cold. ठीक है? So this is just the overview of the heat definition. It is not the actual definition. This is not the definition you are going to write. This is not the definition you are going to understand. This is the definition you are just going to feel. है ना? This is the definition you are going to feel. Somebody having lot of temperature, बहुत गर्मी आ गया, बहुत heat energy है उसमें, है ना? Now coming to a body. Suppose there is a body, the body will consist of certain molecules. Now you give heat to those molecules, what will happen? Random motion of the molecules will increase. What is the motion of the molecule signify? What kind of energy it is? When you are talking about a moving body or the motion of anything, we will be talking about kinetic energy. So the energy possessed by the virtue of the motion, energy possessed by the virtue of motion is kinetic energy. किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मोशन बढ़ता है, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है. किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मोशन बढ़ेगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है. काइनेटिक एनर्जी इज द टर्म गिवन टू दैट एनर्जी व्हिच सिग्निफाइज मोशन ऑफ एनीथिंग. अभी देखो ये बोर्ड, नो मूवमेंट इज देयर, इट इज हैविंग जीरो काइनेटिक एनर्जी. इसको अभी ऐसे ऐसे मूवमेंट कराओ तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा. क्यों? मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. ठीक है, ये तो हो गया. नेक्स्ट इज, as soon as you see all these things, you can see some random motion of molecules. You can also see, also you will have, what you will have intermolecular attraction between the molecules, right? Intermolecular attraction. है ना? Intermolecular attraction वो तो रहेगा. Now whenever you heat it, the intermolecular attraction is going to change. पहले देखो मैं ऐसा था, मेरे साथ ये बोर्ड था, ये भी मॉलिक्यूल, मैं भी मॉलिक्यूल, बीच में थोड़ा सा कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ था. अभी हीट करने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा? मैं इधर थोड़ी रहूँगा, दूर चला जाऊँगा, थोड़ा सा इसके और मेरे बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा. सो दिस चेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज सिग्निफाइड फॉर मॉलिक्यूल्स एज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, change of intermolecular attraction between two bodies is signified by potential energy. Clear है? So this kinetic energy and this potential energy together will consist or constitute something that is called the internal energy. ठीक है? And this internal energy, this total internal energy which comprises of potential energy and kinetic energy will be called as heat energy of the body. Clear है? So understood heat energy? Clear है? So if somebody asks you now, define heat energy. So what will you say? Heat energy is the total internal energy of the molecules of a body. है ना? Heat energy is the total internal energy of the molecules of a body. Internal energy में क्या क्या आता है? Internal energy में potential energy आता है. क्यों आता है? Intermolecular attraction. Internal energy में और क्या आता है? Random motion of the molecules आता है. Kinetic energy. Clear है? Okay, so that is it. That is heat energy. So if you want to define it, it is the total amount of internal energy present inside the body, and it flows from, we are going to study it later.
Okay, next is we are going to study about the units of this heat. ठीक है? So, first of all, I hope you are noting down everything, huh? Units. See, heat energy has an SI unit, it has a CGS unit. So, first of all, what is the SI unit of heat energy? SI unit of heat energy is joule. So, it is the same energy as for energy, है ना? Same unit as for energy. And CGS unit is arg. Okay, so definitely when you are studying the units, the interconversion is very important, right? Interconversion is very important. So before I go for the interconversion, there is another trivial unit, or the unit that used to be used for heat energy was calorie. Okay, calorie is also important. So another unit is calorie. ठीक है? Calorie, basically this calorie means heat. This calorie means heat. ठीक है? So if you want to measure heat, then what it should be called? It should be called, because you are measuring heat, right? So you are measuring calorie. So it should be called calorimetry. Calorie measurement is metry. Remember, measurement is metry. This is whatever you are measuring. This is whatever you are measuring, and this is measurement. Okay, done. Calorimetry, that is measurement of heat. So what is measurement of heat? Measurement of heat is called calorimetry. Clear? Next, now we will go for interconversion. So 1 joule is equal to 10 to the power 7 arg. How it is happening? All these things are taken care while we study about work, energy and power, which we have done in other chapter. So in that, this total interconversion is done. Next, what other interconversion is important over here? Calorie say joule. That is also very important. So 1 calorie is equal to 4.186 joule, which is almost equal to 4.2 joule. Sometime they may ask you 1 joule is equal to how much calorie. So that is basically just the reciprocal of 1 by, that is 4.2, that is 1 by 4.2, it will come about lagbhag 0.24 calorie. So let us revise again. SI unit of heat क्या है? जूल है. CGS यूनिट क्या है? आर्ग है. 1 जूल मतलब कितना आर्ग है? 10 to the power 7 आर्ग है. और एक पुराने काल का यूनिट था, क्या था उसको? कैलोरी. कैलोरी का मतलब क्या है? हीट है. कैलोरीमेट्री कहाँ से आता है? हीट का मेजरमेंट, कैलोरीमेट्री. हीट मतलब कैलोरी, खत्म. कैलोरीमेट्री, कैलोरी का मेजरमेंट मतलब हीट का मेजरमेंट हो गया. नेक्स्ट, 1 कैलोरी मतलब कितना जूल? 4.186 जूल. 4.186 मतलब 4.2 जूल. 4.2 जूल हो गया. 1 जूल मतलब कितना कैलोरी? 1 by 4.2 करो, कैलकुलेट करो, इट विल कम लगभग 0.24 जूल, राइट? 0.24 जूल. क्लियर है? सो दैट इज ऑल अबाउट यूनिट कन्वर्शन. एंड डोंट फॉरगेट, हीट एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. एनी एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? देखो, whenever you are studying, writing is very important. ठीक है ना? Only thing that we don't do is writing, and there वो लोग हमको मात दे देता है. जो लोग लिखता है वो राजा, जो नहीं लिखता है वो प्रजा. ठीक है? ये राजा प्रजा का कहानी सिर्फ लिखना और ना लिखना का है. ठीक है? सो लिखना चालू करो, प्रैक्टिस करना चालू करो. जितना घिसोगे पेन उतना आएगा मार्क्स. ठीक है ना? कंप्यूटर के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में अभी भी पेन और पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है? ओके. लिखने से ज़्यादा याद रहता है, देख लेना तुम लोग. ठीक है? सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ हीट दैट वी हैव डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर.
देखो भाई, टेम्परेचर करने से पहले अपना टेम्परेचर कम कर लो, ठीक है। हाँ, समटाइम्स पीपल से, आई डोंट नो हैव यू हार्ड और नॉट, अपना टेम्पर कम करो। टेम्पर मतलब क्या है, उसका मतलब ये जो बोलता रहता है अपना टेम्पर कम करो, ज़्यादा टेम्पर से बात मत करो मेरे साथ, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? मतलब ज़्यादा गर्मी से बात मत करो मेरे से, गर्मी मेरे अंदर भी है, ठीक है। ज़्यादा गर्मी मत दिखाओ, दैट मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर मत दिखाओ, ज़्यादा उड़ो मत, इसका मतलब ज़्यादा भाव मत खाओ, इसका मतलब कि हर जो चीज़, जो वर्ड हम लोग यूज़ करते रहते, मे बी दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट वी स्टडी, जस्ट दैट वी डोंट रिलेट इट। एक बार रिलेट कर दिया ना, पढ़ाई आसान हो जाएगा। सो लेट अस सी हाउ वी कैन रिलेट इट टुडे विथ टेम्परेचर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टेम्परेचर? It is a physical quantity, right? It is a physical quantity which tells us about degree of hotness or degree of coldness of a body, ठीक है ना? You can write it down. It's a physical quantity which tells us about degree of hotness or degree of coldness of a body, coldness of a body, ठीक है। So first of all, why temperature is important? See, whenever there is a body like this, let us draw a body over here and let's take this body as hot body. Hot body means what? And when you talk about a cold body, what does this mean? See, heat energy always travels from hot body to cold body, ठीक है। heat energy always travels from hot body to cold body. Suppose this hot body has a temperature of TH and this cold body has a temperature of TC. So heat energy always travels from TH to TC and this TH is always greater than TC, ठीक है ना। For a hot body, temperature is higher than a cold body and heat energy always travels from a hot body to a cold body, that means heat energy travels from higher temperature to lower temperature, ठीक है, high T to low T. This high temperature minus the lower temperature, high temperature minus the lower temperature is called temperature difference. Temperature difference, ठीक है। So this heat flow, how much heat energy will flow? So heat means heat energy, ठीक है, we denote it by Q. So how much heat energy will flow is basically dependent on this temperature difference. Clear है? It's basically dependent on temperature difference. Noted down everything? Clear है या नहीं है? देखो फिर से बोलता हूँ, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी मतलब गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी, गर्म बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा, ठंडा बॉडी में टेम्परेचर कम। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी में, ठीक है ना। हीट हमेशा गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी में फ्लो होगा। अगर देखना चाहोगे, ओके, यू कैन डू ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। व्हेनेवर समथिंग इज गेटिंग कुक्ड, you take a small wire, copper wire you can take, it will be very fast then. So and put that copper wire towards if it gets cooked in a steel container, in that steel vessel, whenever it is getting cooked, after some time you will feel warmth in your hand. क्यों फील रहा है भाई? क्योंकि वो जो कढ़ाई है that is a hot body और अपना जो बॉडी है वो कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट आया तो कोल्ड बॉडी में भी टेम्परेचर बढ़ा, तो बढ़ा टेम्परेचर तो टेम्पर बढ़ गया, गरम गरम लग रहा है, तो टेम्पर बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाता है ना। टेम्पर बढ़ जाएगा तो छोड़ देगा तुम उसको, क्यों?
मूवमेंट बढ़ जाता है, टेम्पर बढ़ जाता है तो क्या बढ़ता है, मूवमेंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? मूवमेंट के साथ कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। मूवमेंट के साथ कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कढ़ाई से हीट मेरे पास आया, मेरे हाथ में टेम्परेचर बढ़ गया, मोशन बढ़ गया। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप हो, देखते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्यू, ठीक है ना। सो दिस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस विच विल कॉल एज डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स डिफरेंस, नथिंग एल्स, ठीक है। दिस डेल्टा साइन मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर्स। This is also directly proportional to mass of the body, also directly proportional to mass of the body. So this becomes proportional to m into del t, and I can write this as equal to mc del t. This c is a constant of proportionality. This c is a constant of प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शनल साइन से जब इक्वल करते कांस्टेंट लेना पड़ता है, वो कांस्टेंट हमने लिया, ठीक है। नाउ दिस सी इज बेसिकली, इफ यू वांट टू सी, दिस सी इज बेसिकली क्यू बाई एम डेल्टा टी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देख लो। ये एम और डेल्टा टी को हम इसके नीचे लेके आएंगे, है ना। सिंपल इक्वेशन क्या होगा ना, मैथ्स में लीनियर इक्वेशन, ये इनटू है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो डिवीजन हो जाएगा, हो गया। सो एम डेल्टा टी, ये जो पैरामीटर है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस पैरामीटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। एंड दिस डिफर्स फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, दिस डिफर्स फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, दिस डिफर्स फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, क्लियर है ना। तो एक एक मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, एक एक मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। सो इसका मतलब क्या है वो पहले समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज सी, सी इज क्यू एम डेल्टा टी। सो सपोज समबडी इज हैविंग हाई सी, ठीक है ना, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। somebody, some material is having high C, ठीक है। so what does this mean, C बहुत हाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि this body, if C is high, if C is high, ठीक है, C is high, this body, इसका मतलब ये जो बॉडी है, कुछ भी बॉडी होगा, ठीक है ना, ये जो बॉडी है इसका Q is high, okay, Q is high and delta T will be low because it is in denominator, है ना, if the mass is constant, ठीक है ना, if the mass is constant, because from this I can say C is directly proportional to Q and C is inversely proportional to 1 by delta T. So either Q is high or delta T will be low, then only this is possible. So सपोज ये कांस्टेंट है, ये जो 1 बाई एम पार्ट है इसको ले लो, 1 बाई एम, ये तो कांस्टेंट है, इसको आप सोचो ही मत इसको लेके, यू जस्ट थिंक अबाउट दिस पार्ट। सो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट है ये। सो वी विल जस्ट राइट क्यू बाई डेल्टा टी लाइक दिस, कैन आई राइट। सो इसका मतलब क्या है, ये पैरामीटर का मतलब क्या है, क्यू बाई डेल्टा टी। बहुत अच्छे से समझो, इफ सी इज हाई व्हाट हैपेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, धीरे 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 धीरे। इसका मतलब Q बाई डेल टी इज हाई, है ना, इसका मतलब Q बाई डेल टी बहुत ज़्यादा है ना। C अगर ज़्यादा होगा तो Q बाई डेल्टा टी ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल में मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा Q देना पड़ेगा, ठीक है। सो
एट दिस मोमेंट आई हैव q by delta t. ठीक है, सपोज आई मेक दिस डेल्टा टी नाउ कांस्टेंट, लेट डेल्टा टी बी 1 डिग्री केल्विन. ठीक है, इट्स ए कांस्टेंट, सो आई कैन राइट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना. नाउ सपोज वी आर टेकिंग टू मटेरियल, वन इज C1 अनदर इज C2. ठीक है, आ रहा है क्या, देख लेते हैं, दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है. ठीक है, इधर करते हैं. ठीक है, so one material is, let's take one material is C1, another material is C2. ठीक है, so this is proportional to Q, this is also proportional to Q. Okay, this is Q1, say same amount of Q you can take, but the temperature is 1 Kelvin. So if let's take Q1 Q2. ठीक है ना, so if C1 is more than C2, then can I write Q1 must be more than Q2? क्योंकि C is directly proportional to Q. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी का अगर C ज़्यादा है तो उसका Q भी ज़्यादा होगा. इसका मतलब 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको C1 के केस में बहुत ज़्यादा Q देना पड़ेगा. दैट इज वाई Q1 इज मोर देन Q2. क्लियर है, फिर से बोलता हूँ, डेल्टा टी को हमने कांस्टेंट ले लिया था, डेल्टा टी को हमने कांस्टेंट ले लिया था 1 डिग्री केल्विन. हम चेक करने वाले हैं 1 डिग्री केल्विन राइज कराने के लिए कितना हीट का जरूरत है. तो 1 डिग्री केल्विन जब कर दिया, जब ये कांस्टेंट हो गया, तब ये C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली Q. मास तो पहले ही कांस्टेंट ले लिया हम लोगों ने. सो जब ये ओनली प्रोपोर्शनल टू Q है, जब ये ओनली प्रोपोर्शनल टू Q है, तब जिस केस में C का वैल्यू ज़्यादा, उस केस में डेफिनेटली Q का वैल्यू ज़्यादा होगा. तो किसी भी मटेरियल का अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाना आसान नहीं. ठीक है, किसी भी मटेरियल का अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाना आसान नहीं, क्योंकि उसका 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द कंक्लूजन. कंक्लूजन ये है, इफ ए मटेरियल इज हैविंग हाई C, if a material having, if C is high, increasing temperature is not easy, as it requires more heat to increase टेम्परेचर बाई 1 केल्विन. हो गया. ठीक है, C अगर ज़्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना आसान नहीं है. सपोज आपका C कम है, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा. इसका मतलब आपका घर में जब कुकिंग होता है, जो स्टील का वेसल, एल्यूमिनियम का वेसल यूज़ होता है, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है. द रीज़न इज दैट दे हैव low heat capacity, low specific heat capacity. Now there is another term which is called heat capacity, which is called heat capacity. What is heat capacity? Heat capacity is denoted by capital C, which is mass into small c. ठीक है, स्मॉल c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल C क्या है, हीट कैपेसिटी. इफ यू सी, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास. But specific heat capacity, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट डजंट डिपेंड ऑन मास. ठीक है ना, इट डजंट डिपेंड ऑन मास. It is the property of a material. It is the property of a material. ठीक है, it is the property of a material. Clear है? Next is, if you see what should be its unit. First of all, specific heat capacity. What should be its unit?
specific heat capacity Q by m delta T. So what is the unit of Q? Joule. What is the unit of mass? Kg. Kg inverse, है ना? And what is the unit of delta T? Kelvin inverse. Joule per kg per Kelvin. इसके लिए क्या होना चाहिए? पहले ये वाला लिख लो, mc delta T. So this you can write capital C delta T. Then capital C is equal to Q by delta T. So it should be joule per Kelvin. ठीक है? So that's it. This is about heat capacity. This is about the specific heat capacity. ठीक है? So when we talk about the amount of heat transfer, then what does it depends on? कौन कौन सा पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? That is very important. Once again we'll revise because बहुत डीप चले गए थे ना. Q is equal to mc delta T. It depends on mass. It depends on specific heat capacity. It depends on temperature difference, है ना? So and this is what? This is the heat energy transferred. ठीक है? This is the heat energy transferred. मास के ऊपर डिपेंड करेगा. ट्रांसफर्ड, रिमेंबर दिस इज ट्रांसफर्ड. कितना हीट एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर डिफरेंस. क्लियर? ओके, सो दैट वाज इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. सो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ हीट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट. सो इट वाज कैलोरीमेट्री. तो सिमिलरली व्हाट शुड बी द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर? देखो, टेम्परेचर मीन्स थर्मल. ठीक है ना? टेम्परेचर मीन्स थर्मल. सो टेम्परेचर कम्स फ्रॉम ए वर्ड दैट इज मेंशन्ड एज थर्मो. सो इट इज बेसिकली, टेम्परेचर का क्या वर्ड आएगा? थर्मो. और मेजरमेंट का क्या बोला था? मेट्री. सो टेम्परेचर मेजरमेंट इज थर्मोमेट्री. रिमेंबर, ठीक है? टेम्परेचर मेजरमेंट इज थर्मोमेट्री. कैन आई रब दिस? ओह, आई हैव अ डस्टर. Okay, so let us now think about those गर्मी, जो हाथ में लगने से गर्मी बढ़ जाता है, हाथ का मोशन बढ़ जाता है. क्यों बढ़ता है? लेट्स सी whether we can relate with somebody. It's a body. इस बॉडी के ऊपर I give some heat. So बॉडी में पहले मॉलिक्यूल था, हीट दिया तो क्या हुआ? रैंडम मोशन. टक 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 सब मूवमेंट करने लगा. मोशन जब होने लगता है, रैंडम मोशन जब बढ़ता है, रैंडम मोशन increases, then what increases? Kinetic energy increases. When random motion increases, kinetic energy increases. Whenever kinetic energy increases, temperature increases. Oh my God! समझ गए? हाथ का टेम्परेचर बढ़ा, हाथ का मूवमेंट बढ़ जाता है. हाँ, बच्चे का एनर्जी ज़्यादा, बच्चा दौड़ता है. क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा है. सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, सपोज आई हैव टू कंपेयर टू बॉडीज विच हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, आई कैन कंपेयर इट विथ टेम्परेचर. इफ समबडी इज हैविंग ग्रेटर टेम्परेचर, ही विल बी हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज द शो ऑफ ऑफ टेम्परेचर. ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी इज द शो ऑफ ऑफ टेम्परेचर. अभी देखो, मॉलिक्यूल जब अंदर रहता है, आप हीट करते हो उसको, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, इधर उधर धक्का मारता है. अल्टीमेटली आपको क्या दिखता है? व्हाट डू यू सी फ्रॉम आउटसाइड? यू सी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. यू सी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. सो व्हेन एवर टेम्परेचर विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. सो सपोज आपने हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा. टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा. सो हीट जब तक दोगे तब तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा. काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, अनटिल हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अनटिल क्या? फेस चेंज टेक प्लेस. सॉलिड से लिक्विड,
लिक्विड से गैस, ये जो फेस चेंज का पोर्शन है उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसके पहले टेम्परेचर बढ़ता है। आपको दिखता है, आपको दिखता है, सेंस होता है। इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है, किसके वजह से? हीट के वजह से। जब टेम्परेचर बढ़ता है उस हीट को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्यों? आप उसको सेंस कर पाते हो, ठीक है ना, बिकॉज यू आर एबल टू सेंस इट। क्लियर? कब तक? फेस चेंज तक। फेस चेंज जब होता है तब आप उसको सेंस नहीं कर पाते हो, आप उसको सेंस नहीं कर पाते। क्यों नहीं सेंस कर पाते हो? बिकॉज फेस चेंज में देखो, बिफोर फेस चेंज व्हाट हैपेंस, मोर और लेस द इंटरमोलिकुलर स्पेस रिमेन्स सेम, दैट इज व्हाई लिक्विड रिमेन्स लिक्विड, सॉलिड रिमेन्स सॉलिड है, ठीक है ना। अभी जब फेस चेंज होता है वो वाला पोर्शन, तब वो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, और कुछ नहीं होता, मूवमेंट नहीं बढ़ रहा है उस टाइम पे, जस्ट द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज गेटिंग इंक्रीज, एंड दैट इज व्हाई ये जो स्पेस इंक्रीज हो रहा है ये आप बाहर से कैसे देखोगे? हाउ विल यू अंडरस्टैंड? बाय सीइंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू गेट इंक्रीज, क्योंकि मोशन नहीं बढ़ रहा है। सो उसको हम सेंसिबल हीट नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फेस चेंज के टाइम पे जो हीट के लिए, अभी देखो फेस चेंज के लिए भी क्या चाहिए? फेस चेंज के लिए भी हीट चाहिए। सो ये जो हीट होता है, फेस चेंज के लिए जो हीट होता है, इसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। फेस चेंज के लिए जो हीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। वी से देम लेटेंट हीट। व्हाटएवर हीट इज रिक्वायर्ड फॉर फेस चेंज वी विल कॉल देम लेटेंट हीट। क्लियर है? वी विल कॉल देम लेटेंट हीट। In this time the you can write it down, in this time the intermolecular क्या होता है? Intermolecular space increases, intermolecular space increase होता है। intermolecular space increase होता है तो क्या होता है? intermolecular space increase होता है तो attraction कम होता है, और ये attraction repulsion के साथ कौन सा एनर्जी जुड़ा हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी जुड़ा हुआ है। अट्रैक्शन रिपल्शन के साथ पोटेंशियल एनर्जी जुड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होता है। अभी थोड़ा सोच लो, पोटेंशियल की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा रियल लाइफ से सोचते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? फैन घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। दिख रहा है, घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? जो दिखता है वो है काइनेटिक एनर्जी। वॉट एवर यू कैन सी इट इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो हम में है, हम दिखाते नहीं हैं। वो बोलते हैं ना, इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, ये लड़की में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ करेगा, बोलता है ना। क्यों बोलता है? उसमें है, बट अभी तक हमने देखा नहीं है। जब दिखा दिया काइनेटिक एनर्जी, जब तो नहीं देखा पोटेंशियल एनर्जी। यही तो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यार। जो अंदर में है पोटेंशियल एनर्जी, जो बाहर दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अभी देखो जो अंदर में है, मेरा अंदर में वो पोटेंशियल एनर्जी, ये सब बाहर वाला चीज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया, उसमें और कुछ नहीं बचा है। काइनेटिक एनर्जी हो गया मतलब निकल गया, हो गया, जो करना था इसने कर लिया। और पोटेंशियल एनर्जी जो अंदर में है, तो अभी तुम्हारे अंदर में जो है उसको जगाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, पढ़ाई करो, और थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी आदमी को दिखना चाहिए। मार्क्स, टेम्परेचर, ठीक है ना। नहीं तो लोग समझेगा कैसे? पोटेंशियल एनर्जी है, बोलेगा है मेरे बच्चा में बहुत कुछ है, सिर्फ मार्क्स नहीं आता, टेम्परेचर नहीं आता है, बट है, एनर्जी है। एनर्जी रहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिखाना तो ज़रूरत है ना। चलो, अभी आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो व्हाट एवर एनर्जी दैट इज स्टोर्ड, ठीक है ना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट एवर एनर्जी दैट इज इन मोशन, दैट यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज डूइंग सम वर्क, is basically kinetic energy, and that is what you can sense, and that is what is defined by temperature, because temperature is a parameter by which we can sense how much amount of kinetic energy is there. Later on we are going to have, now I am not saying all this thing vaguely. When you study kinetic theory of gases, okay, there you will study, I think you will study that in physics first and after that in chemistry, ठीक है ना। So in both the subjects when you study that, you will see that these things are true. ओके, दिस थिंग्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। Ke = 3/2,
कपटी, ठीक है ना, वो होता है रिलेशनशिप, ठीक है। सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू लेटर ऑन, ठीक है, अभी नहीं है, बाद में, बहुत देरी है, 2 साल बाकी है अभी भी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अभी किस में कितना एनर्जी है। सो नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ heat energy stored in a body, stored in a body, amount of heat energy stored in a body. देखते हैं यार what is amount of heat energy stored in a body. Now whenever you are talking about amount of heat energy stored in a body, we'll be talking about what are the parameters that are basically defining it. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जिसका जितना मास वो उतना हीट एनर्जी स्टोर कर सकता है, सो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल। अभी हर मटेरियल थोड़ी उतना एनर्जी स्टोर, अभी कॉपर ले लो, अभी कॉपर को थोड़ा सा हीट दोगे वो दूसरे की जगह पे ट्रांसफर कर देगा, वो स्टोर नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो कॉपर कुछ स्टोर कर सकता है, वाटर कुछ अलग स्टोर कर सकता है, ये प्लास्टिक कुछ अलग स्टोर कर सकता है, ऐसा। सो another thing is material, it will depend on material, ठीक है, material of the body, material of the body, ठीक है ना। बॉडी का जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, it will always depend on the material of the body. Suppose it's a highly conducting material, ठीक है, highly conducting material like copper, aluminium, ठीक है ना, highly conducting, so those kind of materials is going to conduct the heat away. So if you conduct the heat away, definitely you are not going to store that heat, ठीक है ना। और अगर आप conduct नहीं करोगे, अपने अंदर रख दोगे, किसी को नहीं दोगे, तो you become a very good store house for heat, so you can store lot of heat. Another thing is the temperature of the body, ठीक है ना, temperature of the body. Now if somebody is having high temperature, definitely he or she will be having higher kinetic energy, right? High temperature मतलब high kinetic energy, and kinetic energy forms a part of the internal energy, right? And the total internal energy is heat energy. देखो कितना क्लियर है, कितना सिंपल है, जब आप क्लियरली पढ़ोगे तब, ठीक है। अभी देखते हैं मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। सपोज कर लो आई टेक समथिंग, आई टेक आयरन, ठीक है, आयरन, आई टेक आयरन, सो आई गिव सम x जूल ऑफ हीट, एंड नेक्स्ट आई टेक कॉपर, हियर ऑल्सो I give x joule of heat, both initially at 0 degree Celsius, initial temperature 0 degree Celsius. We'll see after some time this iron has reached 50 degree Celsius, while the copper has reached say 70 degree Celsius, ठीक है। Why this has happened? Because copper is having low specific heat capacity, ठीक है, ये ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, इसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है। स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, ये जो कितना अमाउंट स्टोर करेगा ना, दिस इज बेसिकली डिफाइंड बाय द हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो कितना स्टोर करेगा, मटेरियल ऑफ द बॉडी मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ही डिनोट कर रहा है। अगर कॉपर ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता है, इसलिए क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कॉपर ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन इसका क्या है, इसका क्या होगा, इसका टेम्परेचर उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा स्टोर करता है, इसका C थोड़ा हाई है कॉपर से, ठीक है ना। जिसका C कम, उसका आपका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा। सो डेफिनेटली C, इफ C कम्स डाउन, C मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इफ इट इज लेस, ठीक है ना, टेम्परेचर राइज विल बी मोर, ठीक है। अगर आपका C कम है तो टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा, अगर आपका C ज़्यादा है तो आपका टेम्परेचर राइज कम होगा, उतना इजीली टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका कैपेसिटी है स्टोर करने का, उसको बॉडी का मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा नचाएगा नहीं, बॉडी का मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा नहीं नाचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ेगा ना जब बॉडी का मॉलिक्यूल नाच रहा है, तो बॉडी का मॉलिक्यूल नहीं नाचेगा क्योंकि उसका कैपेसिटी है उसको स्टोर करने का, नचने के लिए और थोड़ा हीट देना पड़ेगा। सबको इजीली नींद से नहीं जगा सकते, कोई कोई तो कुंभकर्ण होता है ना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। lots and lots of units of temperature. So see, we are going to talk about two kinds of units. One is trivial units. So units, one we are going to talk about trivial units, that is normally what we use, and another is absolute scales. Absolute scales.
So there are different kind of scales. First is trivial scale. So trivial scale is number 1 is Celsius, number 2 is Fahrenheit, here it is Kelvin scale, that is absolute scale. No degree over here, no degree. Number 2 is Rankine, very oldly used one. So there are relationships between these two. Suppose something is in Celsius scale, you have to add 273, to be exact it should be 273.15, but you can use 273 and you will get Kelvin temperature. You add 459 and you will get Rankine temperature. ठीक है ना? You add 273, you get Kelvin temperature. You add 459 with the Fahrenheit scale, you will get Rankine temperature. So Rankine scale is the absolute scale for Fahrenheit scale. Kelvin scale is the absolute scale for Celsius scale. Clear है? और Celsius और Fahrenheit के बीच में we have one universal relationship. Everybody of you already know it, I guess. So F minus 32/9. ठीक है ना? Everybody, I hope you already know it. Always remember, in between these two scale, if you want to compare the change in temperature, remember change 1 degree change in Celsius scale is equal to 1 degree change, not 1 degree, 1 Kelvin change in Kelvin scale. ठीक है? There is no difference between Kelvin scale and Rankine scale. Similarly, 1 degree change in Fahrenheit scale is equal to 1 Rankine change in Rankine scale. ठीक है? सेम है, इसका 1 डिग्री जो चेंज होता है that doesn't differ, the total value differs, plus 273 plus 459. But if you say we are comparing in between say 25 degree Celsius and 26 degree Celsius, what is the difference? 1 degree Celsius. Now if you add 273 to both, then what will happen? 25 plus 273 you are going to get 298, and 26 plus 273 you are going to get 299. So what is the difference? 1 degree. So similarly these two will not have any changes. Now what happens when we compare between Celsius and Fahrenheit? So if you say 1 degree change in Celsius, it will be 9/5 degree Fahrenheit. Okay, 1 degree change, we are talking about change, remember. So suppose there is a change of say 5 degree Celsius temperature in your body. Oh, मर जाएगा भाई. चेंज 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का चेंज हुआ. सो अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज हुआ तो आपका फारेनहाइट स्केल में उसका कितना चेंज होगा? 9/5 into 5, 9 degree Fahrenheit change. ठीक है? So suppose your body temperature was 37 degree Celsius, it has gone up to 42 degree Celsius. ठीक है? बॉडी टेम्परेचर. सो 5 डिग्री चेंज हुआ. सो आप सपोज आपको बोला बंदे का 5 डिग्री से सेल्सियस स्केल से नापा है, 5 डिग्री आया है, तो उसका उधर पे जो आदमी है वो पूछ रहे हैं नहीं मुझे फारेनहाइट में बताओ यार, सेल्सियस में नहीं चलेगा. तो आप क्या करोगे? 9/5 into 5 करोगे, कितना आएगा? 9 डिग्री फारेनहाइट आएगा. बोलेगा नहीं सर 9 डिग्री फारेनहाइट चेंज हुआ है. 9 डिग्री फारेनहाइट तो बहुत होता है, 98 + 9 107 डिग्री फारेनहाइट है ना. नॉर्मली कितना होता है? 98 फारेनहाइट ऑलमोस्ट फॉर नॉर्मल बॉडी, प्लस 9 डिग्री तो 107 डिग्री आ जाएगा. तो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज है तुम्हारा जिंदगी का. अच्छा, देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड द आइस पॉइंट. व्हाट इज आइस पॉइंट? आइस पॉइंट इज नथिंग बट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? आइस पॉइंट इज नथिंग बट 0 डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ऑफ हीट एंड टेम्परेचर फॉर टुडे and our first class. I hope everybody of you will enjoy this first class and will definitely revise by writing, ठीक है ना, and start doing the questions from your relevant books. We will also give you some questions on this, but after the problem solving class, ठीक है ना, after the problem solving class. Next day we are going to study about thermal expansion,
एंड एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर डिटेल में, ठीक है। हाउ डज दिस एक्चुअली हैपन, थोड़ा समझ के, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं पढ़ लेंगे, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। ओके, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।